The name of the chapter that we are starting is Acids, Bases and Salts. Okay, some adjustments I have to do. Just wait for 1 minute. Okay, some students are having the same problem. Now, can you hear my voice? Kavisha, Sarthak Patni, पुलकित पुलकित अटेंडेंस हम जब बोलेगा तब देना है, पहले अटेंडेंस देने से रिकॉर्ड नहीं होगा वो. Kavisha, can you hear the voice? Sarthak Patni, can you hear the voice? Okay, majority of you are getting my voice, so we can start the class. So today we are starting the chapter acids, bases and salt, and this is the first class. और बहुत स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि उन लोग का एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम है, सम प्रॉब्लम, साउंड प्रॉपर नहीं, कभी स्क्रीन प्रॉपर नहीं. So I have decided that I will upload the unedited version. जो unedited version है उसको अपलोड किया जाएगा. We are starting chapter 2 of your syllabus. The name of the chapter, acid, bases and salts. Or if you have some idea of chapter 1, now I think some voice problem, network problem is always there. टेंशन मत लो, क्लास अटेंड करो और साउंड अगर नहीं सुनाई देता है, रिकॉर्डिंग आज रात तक ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसमें टेंशन नहीं है. So we are starting the chapter. If any voice related problem, you have to watch that video again in our YouTube channel Naman Educations. I am starting the chapter. जिसको problem होता है, just remain connected. You may get the voice. So the name of the chapter that we are going to discuss acids, bases and salts. So कम से कम आपको एक acid का नाम, एक base का नाम और एक salt का नाम तो कम से कम जानना चाहिए. Example of one acid, hydrochloric acid, formula is HCl. Example of one base is sodium hydroxide. These are pellets और यहाँ पे solution है, sodium hydroxide pellets ऐसा होता है. Sodium hydroxide का formula NaOH, and sodium chloride is a salt and formula you all know, I think it is NaCl. It is NaCl. So these are some common acid और आपको अपना नोटबुक और पेन रेडी रखना चाहिए. क्लास 10 का स्टूडेंट को कम से कम इतना एसिड का नाम और ये फॉर्मूला मिनिमम रिक्वायरमेंट है. सो यू नोट डाउन द नेम ऑफ द एसिड विथ फॉर्मूला. फर्स्ट वन, sulfuric acid, formula is H2SO4. Second one, nitric acid, formula is HNO3. Third one, phosphoric acid, formula is H3PO4. Fourth one, hydrochloric acid, formula is HCl. Fifth one, acetic acid, formula is CH3COOH. And the last one, carbonic acid, formula is H2CO3. और कुछ यूजेस यहाँ पे दिया हुआ है और कहाँ पे ये मिलता है. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग का बॉडी में स्टमक में रिलीज होता है and that helps in digestion. So your duty is to note down the name and write down the formula. Once you complete, just raise your hand for confirmation. जैसे ही complete होता है, you raise your hand. You can take the screenshot also. मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाद में लिखते रहना ये सब.
सो कॉमन एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड एक बार याद करवा देता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एसिटिक एसिड CH3COOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ओके, नाउ सम कॉमन बेसिस, कुछ कॉमन बेस, और सभी बेस में आप लोगों को यहां दिखाई दे रहा OH पार्ट इज देयर, हाइड्रोक्साइड पार्ट इज देयर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ बेसिस ऐसा भी होता है like metallic oxide, sodium oxide, potassium oxide, they are also bases, we will get the examples later on, but ये कुछ common bases है, sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH, magnesium hydroxide MgOH whole twice, calcium hydroxide CaOH whole twice. So name of common bases and their formula, just confirm whether you have written it or not just by raising your hand. So मिनिमम 2 एसिड और 2 बेसिस तो अभी याद रखना आप लोगों को, 2 एसिड में कॉमन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कॉमन बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. These are some common salts, sodium chloride NaCl, potassium chloride KCl, sodium carbonate Na2CO3. We will discuss the meaning of these terms, acid, bases and salt. Okay, and formula you can write down by the concept of valency also. You can write down salt का formula लिखना easy है, acids का formula you can learn. So sodium chloride NaCl, sodium carbonate Na2CO3, potassium chloride KCl, potassium iodide Ki, and other formula you can easily write down if you have the concept of ions, concept of valency, and one video is already uploaded in the YouTube related to formula writing of ionic compounds. अगर वो वीडियो आप लोग देखोगे, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये फॉर्मूला लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगा. Okay, so at least for today's class you should try to learn 2 examples, ज़्यादा नहीं चाहिए, कम से कम 2 examples, sodium chloride NaCl, potassium chloride KCl, these are common examples. Now since the name of the chapter है acids, bases and salt, तो आज का क्लास हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस, व्हाट आर सॉल्ट्स, और साथ में एक और इंपॉर्टेंट टर्म और वो है एल्कली. ओके, सो एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट, एल्कली, साथ में इफ पॉसिबल वी विल डिस्कस अबाउट इंडिकेटर्स. ओके, सो सबसे पहले द टर्म इज एसिड्स. व्हाट आर एसिड्स? साइंस में किन कंपाउंड्स को हम लोग एसिड बोलेंगे? दिस इज द डेफिनेशन. An acid is a chemical substance which when dissolved in water liberates hydrogen ion or hydronium ion as the only positively charged ion. मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड जो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो वो एसिड के जैसे बिहेव कब करेगा? जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा. When you dissolve that substance in water and that substance splits up into ion, अगर उसका पॉजिटिव आयन ऑलवेज हाइड्रोजन आयन होगा या फिर हाइड्रोनियम आयन. ये हाइड्रोनियम आयन क्या है? हाइड्रोजन आयन ही बनेगा एसिड पानी में डिसॉल्व करने से, लेकिन दैट हाइड्रोनियम आयन कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ. द हाइड्रोनियम आयन कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ एंड दिस हाइड्रोजन आयन कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. तो आप अगर HCl को पानी में डिसॉल्व करोगे, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ गैस, उस गैस को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, सॉल्यूशन बनाओगे, तो HCl आयोनाइज हो जाएगा इनटू H प्लस एंड Cl माइनस. H प्लस एंड Cl माइनस में ये स्प्लिट हो गया. तो HCl को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आयन फिक्स्ड है, कौन सा मिलेगा? हाइड्रोजन आयन. और ये हाइड्रोजन आयन पानी में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. सो दिस हाइड्रोजन आयन विल कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल और एक नया आयन बनेगा, दैट इज H3O+. ओके, हाइड्रोजन आयन के बारे में एक स्पेशल बात बता देता हूं आप लोगों को. हाइड्रोजन आयन इज एक्चुअली अ प्रोटोन. आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम. प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है. जो हम लोग ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, जो हम लोग हाइड्रोजन टर्म यूज करते हैं, दैट इज प्रोटियम, वो प्रोटियम है. तो H+ में न्यूट्रॉन तो नहीं है. H+ होने का मतलब इट हैज ऑलरेडी लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. इट हैज ऑलरेडी लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम हो गया है.
तो जिस हाइड्रोजन एटॉम में सिर्फ एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन इज नथिंग बट वन प्रोटॉन। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल में एक प्रोटॉन ऐड करने से ये कौन सा आयन बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन। सो लेकिन यहां पे हम लोग का मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, मीनिंग ऑफ द टर्म एसिड्स। सो इफ आई आस्क यू व्हाट आर एसिड्स, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट रखना है। व्हाट आर एसिड्स, किन केमिकल कंपाउंड को एसिड्स बोलेंगे? एन एसिड is a chemical substance which when dissolved in water liberates hydrogen ion or hydronium ion as the only positively charged ion. So HCl is a gas dissolved in water will produce hydrogen ion, will produce chloride ion. Thus hydrogen ion cannot exist freely, so will combine with water molecule, will form hydronium ion. तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, acids are those chemical compounds which on dissolving in water, acids are those chemical compounds which on dissolving in water liberates hydronium ion. Definition ऐसा भी हो सकता है, which liberates what? Hydronium ion. The H plus ion in acids cannot exist by itself, but with water molecule it forms which ion? Hydronium ion. With water molecule it will form hydronium ion. So I think you got some idea about the term acid. फिर भी मैं एक बार लास्ट आपको बताता हूं एसिड क्या होता है. Acid is that chemical compound which on dissolving in water positive ion will always be hydrogen ion or hydronium ion. What is the formula of hydronium ion? H3O plus is the formula of hydronium ion. तो यहां पे आप देख सकते हैं जो बात मैंने बताया था आप लोगों को, वाटर मॉलिक्यूल में एक प्रोटॉन कंबाइन होने से कौन सा आयन बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। वाटर मॉलिक्यूल में एक प्रोटॉन कंबाइन होने से कौन सा आयन बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। एंड हियर दिस पिक्चर इंडिकेट समथिंग, उसको समझने का कोशिश करो। HCl को अगर पानी में डिसॉल्व किया तो ये H और Cl के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो हाइड्रोजन आयन अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गया। इसका मतलब HCl behaves as acid only in water. HCl behaves as acid only in water और यहाँ 100% आयोनाइजेशन का बात हो रहा है। इसका मतलब जितना भी मॉलिक्यूल्स है HCl का वो सब आयोनाइज हो जाएगा। ऐसा एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस एसिड्स में बी स्ट्रॉन्ग, एसिड्स में बी वीक। लेकिन व्हाट आर एसिड्स? Acids are those chemical compound which on dissolving in water, what happens? They split to form ion. अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो वो फॉर्म करेगा हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। अगर नाइट्रिक एसिड होगा दैट विल फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड नाइट्रेट आयन। अगर कार्बोनिक एसिड होगा इट विल फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड कार्बोनेट आयन। फॉस्फोरिक एसिड हाइड्रोजन आयन एंड फॉस्फेट आयन। तो इस तरह एसिड will split into ion or the compound will split into positive ion and negative ion, and positive ion is always what? Either hydrogen ion or hydronium ion we can say. Now examples of acid. Already we discussed sulfuric acid H2SO4, hydrochloric acid HCl, nitric acid HNO3, and point number 2 important here. The term acid is derived from the Latin term acidus which means sour. एसिड का जो वर्ड है वो एसिडस से आया हुआ है लैटिन टर्म और उसका मतलब सार यानी खट्टा। ओके, सो एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, बट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो हम लोग टेस्ट नहीं करते। हम लोग नेचुरल एसिड टेस्ट किया हुआ है। वी हैव टेस्टेड साइट्रिक एसिड, वी हैव टेस्टेड टार्टरिक एसिड, वी हैव टेस्टेड एसिटिक एसिड। ओके, क्योंकि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी होता है। द एसिड्स डिराइव फ्रॉम सर्टेन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ओके, तो जो एसिड प्लांट्स और एनिमल्स से मिलेगा उनको ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड्स होता है। एग्जांपल साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड। द एसिड्स डिराइव फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड। जो एसिड केमिकल कंपाउंड का रिएक्शन होकर बनेगा दे आर व्हाट? मिनरल एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला HCl, नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला H2SO4। यहाँ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इफ यू वांट यू कैन राइट, ये टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आप लोगों को। साइट्रिक एसिड इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड और इसका फॉर्मूला है C6H8O7। दिस द फॉर्मूला ऑफ साइट्रिक एसिड। ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये साइट्रस फ्रूट्स में मिलेगा, जैसे ऑरेंजेस में मिलेगा, लेमन में मिलेगा। साइट्रिक एसिड इज अ वीक एसिड। टार्टरिक एसिड इज ऑल्सो अ वीक एसिड एंड इट ऑकर्स नेचुरली इन मैनी फ्रूट्स
और उसमें ग्रेप्स में मिलेगा, बनानाज में मिलेगा, टैमरिंड्स में मिलेगा, साइट्रस फ्रूट्स में भी मिलेगा। एंड द फॉर्मूला इज C4H6O6। फॉर्मूला इज C4H6O6। सो अगर साइंस आपको डीप में पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड पढ़ने से भी प्रॉब्लम होगा, स्लाइट एक्स्ट्रा। ओके और कुछ स्टूडेंट जो बहुत बड़ा ड्रीम है साइंस को लेके, उसको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना होगा। ओके सो इट डिपेंड्स ऑन यू। साइंस में लिमिट नहीं है, थोड़ा लिमिट क्रॉस करना चाहिए पढ़ते वक्त साइंस में। ओके सो साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला शायद मैं आज क्वेश्चन में पूछूंगा आप लोगों को। साइट्रिक एसिड C6H8O7, tartaric acid C4H6O6. So the term acid is derived from which Latin word? The answer is acidus. Organic acid, those acids which are derived from plants and animals. Examples are given here. Now we can move to the next part. तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया एसिड क्या होता है। उसका सिंपल आंसर है एसिड्स आर those chemical compounds which on dissolving in water liberates hydrogen ion as the only positively charged ion। तो एक टर्म क्लियर है, चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। नाउ द सेकेंड टर्म, बेस किसको बोलेंगे हम लोग? व्हाट आर बेसिस? A base is a chemical compound which reacts with hydrogen ion or hydronium ion of an acid to form salt and water। तो आप ये इक्वेशन देखने से आप समझ जाओगे क्या होता है बेस। बेस वो केमिकल कंपाउंड जो कभी भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो दो प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा, उसमें से एक प्रोडक्ट ऑलवेज एक सॉल्ट होगा, दूसरा प्रोडक्ट वाटर होगा। लेकिन आप पहचानोगे कैसे कौन सा कंपाउंड बेस है? तो उसके लिए एक टेक्निक है यहाँ पे, बेसिस आर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल। तो आपको मेटल का ऑक्साइड ज्यादातर, एक्सेप्शंस आर देयर, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दे आर बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑल ऑफ देम आर बेसिस। तो मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेस होता है। लेकिन यहां भी एक इंपॉर्टेंट बात है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अगर आप देखोगे, if you don't know the formula, look at here, ammonium hydroxide NH4OH। ओके 4 सब्सक्रिप्ट में आएगा NH4OH। तो यहां ये बेस है, लेकिन इस बेस में देखो मेटल नहीं है। नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, सभी नॉन मेटल है। तो ये थोड़ा स्पेशल एग्जांपल है। नॉर्मली क्या बोलेंगे हम लोग? बेसिस आर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल। इसमें एक्सेप्शन क्या है? एमोनियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द एक्सेप्शन? एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके So we are discussing about bases। बेस क्या होता है? बेस वो कंपाउंड, बेस इज दैट कंपाउंड which reacts with acid to produce salt and water, and bases are generally oxides of metal or hydroxides of metal। One exception I have discussed, ammonium hydroxide is a base without any metal atom in it। एक ऐसा बेस जिसमें कोई भी मेटल एटॉम नहीं है, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके तो बेस का और भी डेफिनेशन है, बट जैसे एसिड का डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। लेकिन बेस में ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सभी बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते। जो बेस पानी में डिसॉल्व होते हैं उनको एल्कली बोलते हैं हम लोग। ओके तो एल्कली के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो वो आयन वाला कॉन्सेप्ट सभी बेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। Some bases are soluble in water and some are insoluble in water। Okay, so if I ask you what are bases, अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है अलग अलग बुक में। ये हमको लगता है ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। A base is a chemical compound which reacts with hydrogen ion or hydronium ion of an acid to form salt and water, and bases are oxides and hydroxides of metal including ammonium hydroxide। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया, इट इज NH4OH। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड इनिशियली बताया था मैंने, एग्जांपल कुछ याद रखना आप लोगों को। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, HCl एसिड। अगर आप इक्वेशन ठीक से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि इसका OH, बेस का OH और एसिड का H मिलके बन गया H2O, और सोडियम, इसका सोडियम आयन और इसका क्लोराइड पार्ट मिलके क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड।
और ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कैटेगरी में आता है। ओके, सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है, सभी बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल और गिवन है। हम ये डेफिनेशन क्यों परफेक्ट बोल रहे हैं सबके लिए, ये डेफिनेशन हाइड्रोक्साइड के लिए भी अप्लाई होता है, ये डेफिनेशन ऑक्साइड के लिए भी अप्लाई होता है। तो देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कॉपर सल्फेट विच इज सॉल्ट इन वाटर। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, calcium oxide reacts with hydrochloric acid will form calcium chloride and water, so एक बार और दिमाग में आप लोग सेट करो। if I ask you what is a base is a chemical compound which reacts with hydrogen ion or hydronium ion of an acid to form salt and water, and bases are hydroxides or oxides of metal including ammonium hydroxide. Is it clear? So we discussed two important terms, acids and bases. कम से कम दो एसिड का नाम आपके दिमाग में अब तक रहना चाहिए विथ फॉर्मूला, और कम से कम दो बेसिस का नाम आपका दिमाग में विथ फॉर्मूला रहना चाहिए। और एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, देन इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि आफ्टर द रिएक्शन एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी लूज कर चुका होगा, बेस अपना बेसिक प्रॉपर्टी लूज कर चुका होगा, देयर बाय द रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आप लोगों को एक और टर्म समझना है, एल्कली। इनको एल्कलाई भी बोला जाता है। एल्कलीज आर बेसिस, एल्कली बेस ही होता है, लेकिन इनको अलग से क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एल्कली वो बेस होता है जो पानी में डिसॉल्व होता है, और जितना भी बेस पानी में डिसॉल्व होता है उनका नेगेटिव आयन फिक्स है। कौन सा? हाइड्रोक्साइड आयन। क्योंकि एसिड बेस है सॉल्ट, अगर उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे वो आयनाइज हो जाता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में स्प्लिट हो जाएगा। तो जितना भी एल्कलीज होगा, जितना भी वाटर सोल्यूबल बेस होगा, ऑल वाटर सोल्यूबल बेसिस on dissolving in water negative ion is fixed and that is hydroxide ion or hydroxyl ion we can say. So alkalis का definition simple में अगर पूछा जाए water alkali, आप बोल सकते हो water soluble bases are called alkali, water soluble bases are called alkali. Okay, so कुछ क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आप लोग अगर वहां भेजो तो आंसर मिलेगा। अब मंडे से मैं ट्राई करता हूँ, अभी टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बहुत ऐसा हो रहा है कि अभी फोन सारा रिसीव मुझे करना पड़ रहा है, जितना भी इंक्वायरी सब रिसीव मुझे करना पड़ रहा है, तो टाइम का थोड़ा इश्यू है। बट नेक्स्ट वीक से हम डेफिनेटली डेली 2 आवर्स डाउट क्लियर के लिए रखेगा। आप लोग का जो भी डाउट है आपको फोन करके डाउट क्लियर करूंगा या फिर थ्रू व्हाट्सएप, लेकिन डाउट क्लियर 100% होगा। ओके, नाउ व्हाट आर एल्कली? An alkali is a compound which when dissolved in water liberates hydroxide ion or hydroxyl ion as the only negatively charged ion. तो आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी बेसिस एल्कली नहीं होता, बट सभी एल्कली बेस होता है, क्योंकि सभी एल्कली क्या है? वाटर सोल्यूबल बेसिस। बट डेफिनेशन क्या बोल गए एग्जाम में? तो तुमको डेफिनेशन तो बोलना ही है, लिखना है। An alkali is a compound which when dissolved in water liberates hydroxide ion or hydroxyl ion as the only negatively charged ion. An alkali is a base soluble in water. Alkali is a base soluble in water. So NaOH सॉलिड था, हम दिखाया था पिक्चर में आप लोगों को, उसको अगर पानी में डिसॉल्व कर दे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पैलेट्स दिखा था आपको को पिक्चर में स्टार्टिंग में। उन पैलेट्स को पानी में डिसॉल्व करने से पानी में दो टाइप का आयन होगा, सोडियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन ऑलवेज फॉर्म होगा अगर बेस वाटर में डिसॉल्व होता है तो दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। आप थोड़ा समझने का कोशिश करना, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बिकॉज ऑल एल्कलीज डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इज द ओनली नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, एंड ऑल एल्कलीज विल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जितना भी एल्कली है अगर उनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ओके, इसीलिए सभी एल्कली बेस है। लेकिन सभी बेसिस एल्कली क्यों नहीं है? बिकॉज ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सो दे विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। ये डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। देयर आर सम बेसिस दैट आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, दे आर नॉट एल्कलीज बट दे आर बेसिस। कॉपर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस है लेकिन पानी में डिसॉल्व नहीं होता। एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कलीज, एल्कलीज क्या है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड,
Sodium hydroxide, ammonium hydroxide, they are alkalis. They are alkalis. अब एल्कली का या सोप सॉल्यूशन सॉरी बेस का जो सॉल्यूशन है उसका एक नेचर बता देता है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, लेकिन कभी भी डायरेक्टली टच भी नहीं करना चाहिए सॉल्यूशन को भी, बिकॉज अगर एल्कली है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है एंड वो कोरोसिव होता है, दैट कैन क्रिएट सम इरिटेशन और प्रॉब्लम और बर्न योर स्किन. दे आर सोपी टू टच, उनका सॉल्यूशन सोपी टू टच, बेसिस का टेस्ट होता है बिटर एंड दे आर कोरोसिव. Never taste or touch them as they may cause harm to your skin. So अभी तक हम लोगों ने 3 टर्म पे फोकस किया है. आपको एक बार याद दिला देता हूं कौन सा 3 टर्म है. फर्स्ट इज एसिड्स, सेकेंड वन बेसिस, थर्ड वन एल्कली. सिंस चैप्टर का नाम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट है, अगर आपका ये 3 वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो हमको लगता नहीं चैप्टर में आपको कंफ्यूजन रहेगा. एनी टाइम किसको एसिड बोला जाता है, किसको बेस बोला जाता है, किसको सॉल्ट बोला जाता है. एसिड्स on dissolving in water produces hydrogen ion or hydronium ion as the only positively charged ion. Bases are those chemical compounds which react with acid to produce salt in water. Alkalis are those bases which are soluble in water, and if you dissolve alkali in water, the negative ion is fixed and the negative ion is hydroxide ion. Okay, soap solution को टच करने से आपको सोपी फील होगा, सोप सॉल्यूशन को टच कर रहा है ऐसा फील होगा, and they are bitter, corrosive, and you should never taste or touch them. Okay, अब हम लोग बात करेंगे about salts. We will discuss about salts. किसको salt बोलेंगे हम लोग, but before that एक question round होना चाहिए. Now let's some question. किसी भी स्टूडेंट को वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये क्लास अगर आप ठीक से अटेंड नहीं कर पा रहे हो, इसका रिपीट क्लास होगा वापस, यू कैन अटेंड दैट वन. अगर उसका लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, इफ यू डोंट हैव टाइम, तो यूट्यूब में आप इस क्लास का रिपीट देख सकते हो. नाउ आर यू गेटिंग द वॉइस? पार्थ शर्मा सुनाई दे रहा आपको? तनिष चलान, कृतिका घोरावत. Okay, now we can continue. Our next term salt. देखो भूल जाओगे आप लोग, इसलिए दिमाग में सेट रखो. एसिड, बेस, एल्कली हो गया. एल्कली दे आर वाटर सोल्यूबल बेसिस, पानी में डिसॉल्व होने से नेगेटिव आयन फिक्स है, नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन ही होगा. अब सॉल्ट क्या होगा? मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को जिस टर्म में प्रॉब्लम होता है वो है सॉल्ट. ओके, तो फुल फोकस चाहिए यहाँ पे. व्हाट आर सॉल्ट्स? A salt is a chemical compound which is formed by partial or complete replacement of ionizable hydrogen ion of an acid, bimetallic ion or ammonium ion. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है लेकिन यही प्रॉपर है. वैसे तो एक और सिंपल डेफिनेशन भी हो सकता है. A salt is a chemical compound which is formed by neutralization reaction between acid and base. सॉल्ट वो कंपाउंड है जो फॉर्म होता है एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सॉल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड by neutralization reaction between acids and bases. डेफिनेशन वाइज ये करेक्ट है, मार्क्स भी मिलेगा, लेकिन केमिस्ट्री वाइज ये ज्यादा प्रॉपर है. ओके, a salt is a chemical compound which is formed by partial or complete replacement of ionizable hydrogen ion of an acid, bimetallic ion और ammonium ion. मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूं, आपको थोड़ा फोकस रखना होगा. इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन देखिए, KOH प्लस HCl रिएक्शन हुआ. एसिड कौन सा इसमें? HCl. इस HCl में हाइड्रोजन आयन ये है रिमूवेबल. ओके, ये है इसका रिमूवेबल हाइड्रोजन आयन. तो ये हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करना है किससे? मेटालिक आयन या एमोनियम आयन. यहां पे रिप्लेस करने के लिए कौन है? K, पोटाशियम इज द मेटालिक आयन, पोटाशियम आयन. तो देखो ये K H का जगह पे आ गया, तो जो कंपाउंड बना वो क्या बनेगा? KCl. इट इज द सॉल्ट. और सॉल्ट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप लोग? सॉल्ट किसको बोलोगे? जैसे वो सॉल्यूशन वाला बात में कैसे बताओगे सॉल्ट कौन होता है? जैसे हम आपको बोला एसिड को पानी में डिसॉल्व करने से पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन. बेस अगर पानी में डिसॉल्व होगा तो नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन. अगर सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होगा तो क्या मिलने वाला है?
हाइड्रोजन भी नहीं मिलेगा और हाइड्रोनियम भी नहीं मिलेगा और हाइड्रोक्साइड भी नहीं मिलेगा। यानी सॉल्ट वो कंपाउंड है जिसको पानी में डिसॉल्व करने से पॉजिटिव आयन कभी भी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन नहीं होगा, नेगेटिव आयन कभी भी हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होगा, बट देयर आर सम एक्सेप्शन वी विल डिस्कस। ये जनरल बात है, कुछ सॉल्ट बेसिक सॉल्ट भी होता है, लेकिन अभी हम लोग जनरल बात कर रहे हैं। सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करने से पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन नहीं आएगा, हाइड्रोनियम आयन भी नहीं आएगा और नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं आएगा। सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो फॉर्म होता है बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। लेकिन अभी भी ये डेफिनेशन हमको लगता नहीं सबका क्लियर है। अ सॉल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड which is formed by partial or complete replacement of ionizable hydrogen ion of an acid by metallic ion or ammonium ion। तो इसको समझने के लिए एक बार और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एसिड था उस एसिड का हाइड्रोजन पार्शियली रिप्लेस हुआ या कंप्लीटली रिप्लेस हुआ। अगर मैं बोलूँ कंप्लीटली रिप्लेस हुआ तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, एक ही हाइड्रोजन था, that one hydrogen was replaced by potassium, तो यहाँ complete replacement। ओके, लेकिन मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं यहाँ पे। If you look at here, ammonium hydroxide which is a base reacts with HCl which is acid। ओके, मैंने आप लोगों को बोला डेफिनेशन में अगर ठीक से फोकस करो कि एसिड का हाइड्रोजन पार्ट या तो मेटल रिप्लेस करेगा या फिर एमोनियम आयन रिप्लेस करेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज सॉल्ट। एमोनियम आयन भी हो सकता है, यहां पे मेटल आयन रिप्लेस किया। इन दिस इक्वेशन ये एसिड HCl इज द एसिड, ये एसिड का हाइड्रोजन कौन रिप्लेस कर रहा है? देखो यहाँ पे एमोनियम यहाँ पे आ जाएगा तो एमोनियम क्लोराइड हो गया, तो ये सॉल्ट है। एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस एमोनियम आयन करने से सॉल्ट बनता है। ये एसिड यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन आयन कौन रिप्लेस किया? देखो यहाँ पे NH4। ओके, NH4 ट्वाइस हो गया, सल्फेट का वैलेंसी 2 है, NH4 का वैलेंसी 1 है, दैट इज फॉर्मूला राइटिंग। और यहाँ रिप्लेसमेंट हुआ कि नहीं? पार्शियल और कंप्लीट। यहाँ हाइड्रोजन पार्शियली रिप्लेस हुआ या कंप्लीट? द आंसर इज कंप्लीट रिप्लेसमेंट। यहाँ हाइड्रोजन पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ या कंप्लीट? द आंसर इज कंप्लीट रिप्लेसमेंट। बट लुक एट द थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे H2SO4 में H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन एटॉम्स, लेकिन वो दोनों का दोनों रिप्लेस नहीं हुआ। देखो Na एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और एक हाइड्रोजन बचा हुआ यहाँ पे HSO4 एंड सोडियम हैज रिप्लेस्ड ओनली 1 हाइड्रोजन, ये भी सॉल्ट है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्ट। So salt is a chemical compound which is formed by partial or complete replacement of hydrogen ion of acid by metallic ion और by ammonium ion। पार्शियल रिप्लेसमेंट से भी हो सकता है NaHSO4। ऐसा और कोई कंपाउंड आप लोगों को अगर पता है जिसमें इस टाइप का फॉर्मूला है तो आप लोगों को शायद मैं याद दिला देता हूं, ऐसा कंपाउंड आप लोगों को मिला होगा। वन सच एग्जांपल इज NaHCO3। इस कंपाउंड का नाम कोई बता सकता है चैट में? एनीवन हु कैन टेल मी द नेम of this particular compound? Good, Joydeep Goswami, Saima correct answer, Vanya chemical name चाहिए, Subham Agarwal, Rishika, okay, Raksha, Karan Chajar, wrong answer। The answer is sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। लेकिन हम लोग का एक ही आज का क्लास का मेन टारगेट है हमारा, तुमको चैप्टर का जो नाम है वो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। द नेम ऑफ द चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन or hydronium ion as the only positively charged ion। Bases are those chemical compounds which react with acid to produce salt and water। Bases are mainly hydroxide or oxides of metal, but all bases are not soluble in water। Water soluble bases are called alkali। When a base is dissolved in water, in that case negative ion is always hydroxide ion। अब सॉल्ट क्या होता है? स्टार्टिंग में जनरल आप बोल सकते हो,
A salt is a chemical compound which is formed by neutralization reaction between acid and base, and a salt is a chemical compound which is formed by partial or complete replacement of hydrogen ion of an acid by what? Either by metallic ion और बाय अमोनियम आयन। तो अगर हम आप लोगों को कुछ सैंपल दे रहा है, कुछ कंपाउंड का नाम बोलेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है वो एसिड होगा, बेस होगा या सॉल्ट होगा। ओके, फर्स्ट वन अगर हम बोले CaCO3, ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट? एसिड, बेस और सॉल्ट। बहुत लोग एसिड लिख रहे हैं, रॉन्ग है। बहुत लोग बेस लिख रहे हैं, वो भी रॉन्ग है। दिस कंपाउंड इज सॉल्ट। वान्या करेक्ट, श्रव्या, शुभम, विद्या। अब ये सॉल्ट कैसे, यही तो कंफ्यूजन है। हम पूरा चैप्टर पढ़ा देगा आप लोगों को, लेकिन आपको अगर ये नहीं पता चला कि कंपाउंड एसिड होता है, बेस होता है, सॉल्ट कैसे पता लगाए? ये कंपाउंड एक सॉल्ट है। चलो सॉल्ट कैसे? क्योंकि इसको अगर हम पानी में डिजोल्व किया, अगर किया, होता है कि नहीं वो अभी हमको याद नहीं, अगर डिजोल्व होता है, नहीं होता ये पानी में, तो ये दो आयन बनने का पॉसिबिलिटी है क्या? हाइड्रोजन आयन बनने का पॉसिबिलिटी है क्या? हाइड्रोक्साइड आयन बनने का पॉसिबिलिटी है क्या? हाइड्रोनियम आयन बनने का पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। अब आप इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देख के आपको एक आइडिया होगा। CaCO3, उसमें CO3 पार्ट किसी एसिड का नेगेटिव पार्ट है क्या? कौन सा एसिड का नेगेटिव पार्ट? चलो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सॉल्ट कौन सा एसिड या कौन सा बेस मिलके बना होगा, गेस करो। जैसे नीचे कुछ एग्जांपल दिया हो आप लोगों को, आप ये गेस करो कि ये सॉल्ट कौन सा एसिड और कौन सा बेस मिलके बना हुआ। दोनों चीज बताना है, एसिड और बेस दोनों का नाम। एसिड और बेस, शुभम अग्रवाल करेक्ट आंसर। एसिड और बेस का दोनों का एग्जांपल होना पड़ेगा। कौन सा एसिड? प्रोबेबल, हाँ प्रोबेबल, ऐसे आंसर मत दो। एसिड और बेस, मेटल नहीं, साइमा कैल्शियम मेटल, एसिड और बेस, विच एसिड विच बेस, आपको गेस करना है। जयदीप गोस्वामी करेक्ट, करण रॉन्ग है, श्रव्या रॉन्ग है, श्रव्या ओके, श्रव्या रॉन्ग है, सॉरी नहीं पता चला ठीक से। अनामिका करेक्ट, प्रीति रॉन्ग, अद्वित भी रॉन्ग, कौस्तभ, बहुत लोगों का नहीं दिखाई पड़ रहा है, इतना फास्ट मेरे सामने से सबका जा रहा है, फिर भी कोशिश करता है। अन्वेषा करेक्ट। तो आपको ये जब पता चलने लग जाएगा तभी इस चैप्टर में मजा आएगा आपको। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना होगा? एक गैस हम लोग करके देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का चांसेस है, ये एक पॉसिबिलिटी है कैल्शियम ऑक्साइड, एक पॉसिबिलिटी है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड H2CO3। एक और पॉसिबिलिटी है इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस, बेस प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। एक और पॉसिबिलिटी है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अगर हम लिखे कार्बोनिक एसिड H2CO3, इन दैट केस ऑल्सो विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको ये आइडिया होना पड़ेगा, दिस कंपाउंड इज द सॉल्ट, this compound is the salt because this compound is formed by neutralization reaction between acid and base. Okay, so मैंने डिस्कस किया चार इंपॉर्टेंट टर्म, एसिड, बेस, सॉल्ट एंड एल्कली। तो एसिड, बेस, सॉल्ट, एल्कली ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट क्लास तक कम से कम आपको ये टर्म याद रखना है। अभी क्लास कंटिन्यू है। तो यहां पे एक क्वेश्चन है, गेस द नेम ऑफ द एसिड एंड बेसिस दैट रिएक्ट टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग सॉल्ट। कौन? मैग्नीशियम सल्फेट का गेस करना है आप लोग को जल्दी। कौन सा एसिड और कौन सा बेस मिलके बना होगा ये मैग्नीशियम सल्फेट? दोनों नाम एक साथ बताना होगा, जिनल एक नाम से नहीं होगा। शुभम अग्रवाल चैंपियन साबित हो रहा है अभी। हार्दिक जैन करेक्ट है, लोकेश करेक्ट है, कौस्तभ करेक्ट है, पार्थ रॉन्ग है, पार्थ। नाव्या करेक्ट, करण छाजर रॉन्ग है, घर में पढ़ना होगा। विवेक जैन करेक्ट, प्रीति डे रॉन्ग, ऋषिका जैन रॉन्ग, आयोना आई कुड नॉट सी दैट, तीजू करेक्ट है, तीजू फॉर्मूला खाली रॉन्ग है तुम्हारा, वैसे करेक्ट है। सो एक पॉसिबिलिटी मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है ना, तो
तो मैग्नीशियम सल्फेट बनने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, ये याद रखो। क्लोराइड बनने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। नाइट्रेट बनने के लिए नाइट्रिक एसिड चाहिए। नाइट्रेट सॉल्ट के लिए नाइट्रिक एसिड गेस कर लो। क्लास 10 लेवल में इतना जानना बहुत बात है। तो सल्फेट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैग्नीशियम का बेस होगा ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी। इसका आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नाउ दिस वन, ये रहा। सोडियम कार्बोनेट बनने के लिए Na2CO3 कौन सा एसिड कौन सा बेस, जल्दी से। सोडियम कार्बोनेट बनने के लिए एसिड कौन सा, बेस कौन सा? सोडियम कार्बोनेट, विच एसिड? सोडियम कार्बोनेट के लिए संजीदा सोडियम बेस, नेम फुल नेम चाहिए हमको। ऋषिका सोडियम कार्बोनेट का पूछ रहा। सिद्धांत करेक्ट आंसर है। कौस्तभ करेक्ट आंसर है। अनुर्वा करेक्ट, इनकम्प्लीट है। आयोना, अरे बहुत फास्ट है सबका, तो आंसर ही नहीं देख पा रहे हम, थोड़ा स्लो। रौशिक करेक्ट है। रौशिक का रॉन्ग है, सॉरी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। स्नेहा सरावगी करेक्ट। अन्वेषा करेक्ट आंसर। जीनल करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। अब हम आप लोगों को एक आइडिया दे, कार्बोनेट मतलब एसिड का आइडिया होना पड़ेगा आपको। कार्बोनेट मतलब एसिड है, कार्बोनिक एसिड, एसिड इज कार्बोनिक एसिड। ओके, और सोडियम है तो उसका एक बेस गेस करो। सोडियम ऑक्साइड भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। अब आप लोगों को ये चैप्टर से क्या बेनिफिट होगा, अब आप इक्वेशन फ्रेम करना धीरे धीरे सीखोगे। आपको सोडियम कार्बोनेट प्रोडक्ट चाहिए तो लेफ्ट में आप लिख सकते हो इट्स सोडियम ऑक्साइड प्लस carbonic acid will give you sodium carbonate and water. Okay, now differences between acids and bases, कुछ common differences between acids and bases। प्रॉपर्टीज में एक है टेस्ट, एसिड का टेस्ट सार, बेसिस का टेस्ट बिटर। कोई स्टूडेंट ये भी सोच सकता है एसिड कैसे टेस्ट करेंगे, बहुत डेंजरस होता है। नहीं, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड, उनको टेस्ट किया जा सकता है। बेसिस में भी वीक बेसिस होता है। एक ऐसा बेस है जो हम लोग मेडिसिन में भी यूज कर सकते हैं, और वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको वो डाइजीन वगैरह जो होता है सर, डाइजीन जो मेडिसिन होता है डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऐसा कंपाउंड को एंटासिड बोला जाता है। हम लोग बेसिस भी कंज्यूम करते हैं। लिटमस टेस्ट, लिटमस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्लास 7-8 ऑनवर्ड्स मिल जाता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। डिसॉल्व करने से क्या होता है, एसिड पानी में डिसॉल्व करने से या तो हाइड्रोजन आयन मिलेगा या फिर आपको मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी हाइड्रोनियम आयन। बेसिस को पानी में डिसॉल्व करने से क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। पानी में डिसॉल्व होने से कंडीशन इज देयर। एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट किया तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, लेकिन कोई हमको बता सकता है इसमें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन इसमें इन्वॉल्व है? ओके, वॉइस प्रॉब्लम है तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा थोड़ा। नाउ कैन यू हियर द वॉइस? शुभम अग्रवाल, हर्षल सराफ, पार्थ, सुनाई दे रहा है? ओके, हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो ये स्पेशल कंडीशन क्या है इसमें, व्हाट इज दैट स्पेशल कंडीशन कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करने से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा? चिराग जैन रॉन्ग है आंसर। एनी अदर? शुभम अग्रवाल, क्वेश्चन है कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन है, वो स्पेशल कंडीशन अभी तक नहीं मिला। गुड, रिपुंजय, योर आंसर इज करेक्ट। रिपुंजय फर्स्ट आंसर उसी का मिला। तो ये है मेटल शुड बी अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। उस मेटल को रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होना पड़ेगा। ओके, सो एक्शन विथ मेटल्स गिव हाइड्रोजन गैस, जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स। जनरली एक्सेप्शन है जो हम लोग चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो टुडे आई फोकस्ड मेनली ऑन, आज का हमारा मेन फोकस था एसिड क्या है, बेस क्या है,
सॉल्ट क्या है और एल्कली क्या है। ओके, दिस 4 डेफिनेशन आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। आप चारों डेफिनेशन पे एक बार फोकस करो, देन आई विल कंटिन्यू विद द क्लास। ओके, 2 मिनट टाइम है आप लोगों के पास टू फोकस ऑन दैट डेफिनेशन। हो सकता है हम किसी को डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा वीडियो में एंड आपको बिना कोई हेल्प के आंसर देना पड़ जाए। ट्राई टू लर्न। ओके, बाय दिस टाइम यू कैन डू वन थिंग। आप लोग पढ़ते भी रहो और अपना अटेंडेंस रजिस्टर करना आप लोगों को। अटेंडेंस रजिस्टर करने के लिए द फॉर्मेट इज योर नेम एंड स्कूल नेम, and if you are new student at Naman Education or Vidyarthi classes Maligaon, then your name, school and phone number. Just register your attendance and try to learn the definitions. So we have just discussed differences between acids, bases, acids and bases. Now we can start discussing about indicators. Indicators क्या होता है? अगर आपको एक सॉल्यूशन दिया जाए और पूछा जाए वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, वो तो कैसे पता लगाओगे? उसको पता लगाने के लिए कुछ केमिकल टेस्ट होता है। उसमें से एक टेस्ट है द यूज ऑफ इंडिकेटर्स। कुछ ऐसा सब्सटेंसेस जो हम लोग को कुछ कलर चेंज करके या उनका स्मेल चेंज करके हम लोग को एक इंडिकेशन देगा कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस, इसीलिए इनको हम लोग बोलेंगे इंडिकेटर्स। दे आर व्हाट? इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सो इफ आई आस्क यू what are indicators? Those chemical substances which change their color or order in different types of substances are called indicators. They are called indicators because they indicate the presence of an acid or a base by showing the change in color. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी इंडिकेटर तुमको एसिड और बेस दोनों को आइडिया देगा। कुछ इंडिकेटर स्पेसिफिकली आपको आइडिया देते हैं अबाउट बेस, सम इंडिकेटर्स स्पेसिफिकली गिव यू आइडिया अबाउट एसिड, और कुछ इंडिकेटर आपको तीनों चीज बता सकते हैं वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। दे आर एसिड बेस इंडिकेटर। सो इंडिकेटर दैट शो कलर चेंज उनको हम लोग बोलेगा एसिड बेस इंडिकेटर, जो कॉमनली यूज होता है। एग्जाम्पल्स आर देयर लिटमस, टर्मरिक, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, रेड केबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट। ये चार जो यहाँ पे दिया वो नेचुरल है। मिथाइल ऑरेंज लैब में बनाया जाता है अलग अलग कंपाउंड मिक्स करके। मिथाइल ऑरेंज इज एन इंडिकेटर। फेनोप्थेलिन इज अनदर इंडिकेटर। ओके, देन इंडिकेटर्स दैट शो ऑर्डर चेंज। ऐसा इंडिकेटर भी होता है जिनमें पिकुलियर स्मेल होता है और एसिड में उनका स्मेल रिटेन होगा, बेसिस में उनका स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो अगर कोई सॉल्यूशन बेसिक है और उसमें हम ऑनियन एक्सट्रैक्ट डाल दिया तो उसका स्मेल चला जाएगा। दैट विल इंडिकेट दैट द गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक। सो ये कुछ इंडिकेटर है, कैसे यूज करना आई विल डिस्कस।
So if I ask you, give some examples of natural acid base indicators. Example: litmus, turmeric, flower of hydrangea, red cabbage leaves extract, methyl orange is synthetic. These are natural. और olfactory indicator, जो स्मेल से रिलेटेड इंडिकेटर उनको क्या बोलेंगे? olfactory indicator, जैसे ऑनियन, vanilla essence and clove oil. These are the examples of olfactory indicators. तो ये टेबल अगर आपको लर्न है तो, और अगर लर्न हो जाएगा तो आपको इंडिकेटर का जो न्यूट्रल कलर या नेचुरल कलर जो है वो पता चल जाएगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन में उनका कलर कैसा होगा, एसिड में कैसा होगा और बेस में कैसा होगा। ओके, सो देखते हैं आपका मेमोरी पावर कितना शार्प है, थोड़ा देर में पता चलेगा। लुक एट दिस पर्टिकुलर टेबल। लिटमस का नेचुरल कलर और कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इज पर्पल, लेकिन एसिड में वो रेड हो जाता है एंड बेसिस में ब्लू। पर्पल टू रेड एंड रेड टू ब्लू, आप सीक्वेंस याद कर लीजिए। रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज का लीव्स का एक्सट्रैक्ट तो रेड ही होगा, और कैबेज हम लोग तो ग्रीन देखते हैं मेनली, बट रेड कलर का भी आएगा। वो रेड मतलब ये कुछ डीप पर्पल जैसा होता है, तो एक्सट्रैक्ट को रेड कलर माना जाता है। एसिड में इट विल रिमेन रेड, बेस में ये ग्रीन हो जाएगा। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, मैं आपको दिखाऊंगा एक पिक्चर कैसा फ्लावर होता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया का नेचुरल कलर है ब्लू, और भी कलर का आता है लेकिन हम लोग को ब्लू कलर वाला फ्लावर चाहिए। एसिडिक मीडियम में ब्लू रहेगा और बेसिक मीडियम में फ्लावर पिंक हो जाएगा। तो छोटे बच्चे जो तुम लोग का पड़ोस में रहते हैं उनको जादू भी दिखा सकते हो। ये हाइड्रेंजिया फ्लावर सॉल्यूशन में डीप किया, ब्लू कलर से पिंक हो गया, लात मारेगा बाद में वो अलग बात है। टर्मरिक, टर्मरिक का कलर सबको पता होगा। टर्मरिक का कलर इज येलो कलर, और एसिड में येलो ही रहेगा लेकिन बेस में हो जाएगा रेडिश ब्राउन। ओके, यू विल हैव टू लर्न दिस टेबल, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देने में हेल्प मिलेगा आपको। सिंथेटिक इंडिकेटर में एग्जांपल्स है, टू एग्जांपल्स, फेनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फेनोप्थलीन एक कलरलेस इंडिकेटर है, उसका न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहेगा। एसिड में इट रिमेन्स कलरलेस, बेस में इट विल टर्न टू पिंक। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज, एसिड में रेड और बेस में येलो। ओके, सो ये तो लर्निंग बात है, आपको एक बार मैंने बता दिया, बट यू विल हैव टू लर्न देयर कलर, चेंज इन कलर इन एसिडिक मीडियम, चेंज इन कलर इन बेसिक मीडियम। तो ये लिटमस पेपर ऐसा इंडिकेटर यूज किया जाता है, दो कलर में अवेलेबल है, ब्लू एंड रेड। देन टर्मरिक यू ऑलरेडी नो, कलर इज येलो। ये रहा फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। This is flower of hydrangea, blue colored flower. This is used as indicator. Blue colored flower. This is used as indicator. Okay, voice problem again. तो वॉइस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, अब पैनिक होने का जरूरत नहीं है, वॉइस तो अब हमारा कंट्रोल में नहीं है ये। नाउ कैन यू हियर द वॉइस? अभी सुनाई दे रहा है? नम्रता दास, कैन यू हियर? नम्रता दास, कैन यू हियर द वॉइस नाउ? गुड। तो वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा फोकस करो, पिक्चर तुम्हारे सामने रहेगा तो इतना तुम्हारा वो लॉस नहीं होगा इफ यू कंटिन्यू दैट। बीच में माइनर प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन भी अब हम अनएडिटेड डायरेक्टली यूट्यूब में डाल के आप लोग को लिंक भेज देगा। ओके, तो आपको जब भी टाइम मिले वो पोर्शन आप वापस देख सकते हो। और एक और ऑप्शन आपके पास, ये क्लास का रिपीट क्लास होता है वापस 9:30 में, तो वो पर्टिकुलर टाइम में आप अगर टाइम फ्री है, बैठा है घर में, लॉकडाउन में टाइम पास करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। तो रेड कैबेज ये देख लो, रेड कैबेज का लीव्स यहाँ पे, उसका एक्सट्रैक्ट कैसा होगा। मिथाइल ऑरेंज इस टाइप से है, एसिड में कैसा कलर होगा, एल्कली में कैसा होगा। लुक एट दैट पार्ट, वो टेबल में सब। हाँ, मनन जैन का आंसर है, क्वेश्चन है कि रेड कैबेज ईटेबल है क्या? यस, खा सकते हो तुम। जनरली ये आपको शॉपिंग मॉल वगैरह में जिसमें ग्रोसरी पार्ट होता है वहाँ ज़्यादा मिलेगा, अभी मार्केट में गुवाहाटी में आराम से मिलता नहीं है। फेनोप्थलीन कलरलेस है, एसिड में कलरलेस ही होगा, बेस में कैसा कलर होगा यू कैन सी हियर।
तो आज हम सोच रहे हैं कि आपको वो टेबल लर्न करने तक मेरा डिस्कशन ठीक है। वो आप नेक्स्ट क्लास तक उतना पढ़ो, शीट आपके पास है, और शीट अगर आपके पास नहीं है तो फ़ोन में आपको बताना है, हम इमीडिएटली आपको शीट फॉरवर्ड कर देगा। तो आपका ड्यूटी है, आपको जो मटेरियल है उसमें से ये टेबल नेक्स्ट क्लास तक लर्न करके रखना है आपको। दिस इज़ योर ड्यूटी। और अभी क्लास में ओवर कर रहा हूँ, जिन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर नहीं किया दे कैन रजिस्टर इट नाउ। और किसी को कोई प्रॉब्लम मेजर हो रहा है तो चैट में हमको बता सकते हैं, एनीवन, एंड यू कैन ऑल्सो लीव द मीटिंग इफ यू वांट। शुभम अग्रवाल व्हाट्सएप में भेजा है, जब टाइम मिलेगा देख के हम आंसर दे देगा। कुछ कुछ आंसर भेजा भी है तुमको शायद हम। स्वेतलाना ओझा, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3। शुभम तुम क्वेश्चन पूछ लो, कल परसों से हम डेली एक टाइम निकालेगा, फोन करके भी डाउट क्लियर हो जाएगा अगर रिक्वायर्ड होगा। पार्थ शर्मा, एसिड वाला पार्ट तुमको प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में वो पोर्शन तुम क्लास अटेंड कर लेना। डेफिनेशन ऑफ एसिड, आपके पास मटेरियल है तो मटेरियल में एसिड बेस सॉल्ट सबका डेफिनेशन है, जितना भी बात मैंने बोला है वो सब शीट में है। ओके, किसी को अगर फॉर्मूला छूटा है, साइट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम हियर। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला और साइट्रिक एसिड का स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हो। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। अटेंडेंस आपको चैट में ही देना है, कृपा चैट में ही आपको अटेंडेंस देना है, उसमें आपका नाम और स्कूल का नाम होना चाहिए। ओके, तो क्लास अभी एंड होता है, टाइमिंग में अभी सेम ही रख रहा हूँ। फामिदा एक साथ लिखो, नेम एंड स्कूल नेम, इसे पार्ट पार्ट में लिखने से रिकॉर्ड करना मुश्किल होता हम लोग के लिए। नेम, योर नेम एंड स्कूल नेम टुगेदर। एसिड का एग्जाम्पल, कितना एग्जाम्पल दिया, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, फॉस्फोरिक एसिड, सब एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड पार्ट्स। निकिता, योर स्कूल नेम इज नॉट रिटन हियर, योर नेम एंड स्कूल नेम टुगेदर। फामिदा, अब करेक्ट है तुम्हारा।